Good morning, class. Today we will study principles of art. That is actually our last topic of this first lesson. Principles of art are a few important terms that we usually use in art. These are balance, emphasis or dominance. Number 3 is rhythm or movement. Number 4 is proportion or scale. Number 5 is harmony or unity. Number 6 is abstraction. Number 7 is stylization. Principles of art are a few important terms that we use while learning and appreciating art. They are undoubtedly the building blocks of visual art. First one is balance. जितने भी आप प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट देखते हैं या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट देखते हैं, इनके बिना आर्ट का कंप्लीट होना या आर्ट को क्रिएट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. रादर आई वुड से दीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल इन क्रिएटिंग एनी आर्ट वर्क. तो पहला सबसे ज़रूरी क्या है? बैलेंस. Balance is the arrangement of art elements to produce visual symmetry in a pictorial or sculptural composition. Balance is often referred to as symmetrical or asymmetrical or radial. Balance देखिए, बैलेंस क्या बता रहे हैं? वो अरेंजमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट्स. अब आर्ट एलिमेंट्स क्या हैं? पॉइंट, लाइन, कलर, टेक्सचर एंड फॉर्म, शेप. ये सारे क्या हैं? ये हैं एलिमेंट्स. जब हम ये सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में सेट कर देते हैं तो कैसे हम अचीव कर लेते हैं? बैलेंस. दैट इज़ नोन एज बैलेंस. ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, असिमेट्रिकल भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है. एम्फसिस और डोमिनेंस. नंबर 2 पर हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज नोन एज एम्फसिस और डोमिनेंस. डोमिनेंस इज द एम्फसिस ऑफ वन पार्ट over another, subordination of the other results. Emphasis refers to the created center of interest or focal point, the place in an artwork where your eyes first lands. It occurs when the artist manipulates the elements of art so that your eye is drawn to a particular area. That is actually the emphasis given by the artist. It means you can see the emphasis of anything if artist has been successfully able to manipulate the elements of art in such a way कि आपका वो जो ध्यान है वो एक ही तरफ पर खींच ले. ठीक है. जैसे अगर हम रात को आसमान की तरफ देखें और दैट इज़ फुल मून नाइट तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली आपका ध्यान कहाँ जाएगा? चांद पर. सिमिलरली अगर एक डार्क पिच कैनवस को पेंट कर दिया जाए और उसके ऊपर हल्के हल्के वाइट डॉट्स लगा दिए जाए और एक बहुत बड़ा सर्कल बना के उसमें वाइट कलर कर दिया जाए तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस वाइट सर्कल की तरफ जाएगा. दैट मीन्स आर्टिस्ट हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंस टू दैट वाइट सर्कल. इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट हैज़ गिवन dominance or emphasis on that one circle to create that importance of the circle to show it as a moon, right? As I don't have pictures right now, I'll be able to show you pictures later on only. Here it is written that the artist has used certain space or color contrast to create the desired emphasis. That I'll be showing you later on. And if you have any book of old student, you can see what is actually. Now the next one is rhythm. Rhythm or movement. Rhythm is the repetition of art elements providing progressive and related movement. When we see an artwork consciously or subconsciously, our eyes move in a rhythm. Rhythm or movement refers to the suggestion of a motion through the use of various elements, sometimes a pattern, repetition, or reoccurrence of a design element, exact or varied, as is used, which establishes a visual beat. For example, zebra crossing. रिदम क्या होता है? ये है repetition of art elements.
इसका ये है कि जब हम किसी भी आर्ट वर्क में कुछ रिदम लाना चाहते हैं तो हम सिमिलर ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को रिपीट करते हैं या पैटर्न को रिपीट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे एक रिदम आ जाती है और एक मूवमेंट आ जाती है, जिससे क्या लगता है कि एक चीज़ कॉन्टीन्यूटी में चल रही है। अब देखो ज़ीब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग में एक पैटर्न रहता है, एक लंबी लंबी लाइंस रहती हैं, तो एक ही साइज़ की होती हैं वो, तो वो क्या करते हैं, उनको रिपीट करते हैं, तो एक प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक फॉर्मेशन आता है जिसको हम एक मूवमेंट और रिदम की तरह कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज proportion or scale. Proportion is the size of parts in relation to a whole and to one another. Scale refers to relating size to a constant such as a human body, our eyes and nose in relation to our face, and our face in proportion to our whole body. In a landscape, everything is made in proportion and perspective to obtain a sense of realism. The size of the following animals in proportions to each other is very important while sketching them together. अब क्या है ये, अगर हमें proportion का नहीं पता होगा, scale का नहीं पता होगा, तो we can create lot of mess in our painting. Suppose मैंने एक पेड़ पीछे दिखाना है और बहुत दूर दिखाना है, और मैं एक हट दिखाना चाहती हूँ, बड़ी दिखाना चाहती हूँ, पास दिखाना चाहती हूँ। अब मैं अगर पेड़ पीछे है, बहुत दूर है, तो उसको बड़े साइज़ में नहीं बना सकती। इसका मतलब मुझे प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि डिस्पाइट ट्री कैन बी लार्जर देन अ हट, आई हैव टू मेक इट स्मॉल एज इट इज़ सो फार ऑफ। ठीक है, तो इसी तरह अगर मुझे एक चेहरा बनाना है और उसमें आईज़ में बैलेंस लाना है, तो मुझे पता होना चाहिए जो आईज़ का प्रोपोर्शन है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल फेस क्या होना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो दोनों आँखें हैं, दोनों आँखों में एक आँख का डिफरेंस रहता है, ठीक है, जिस हिस्से में हमारी नोज़ आती है, राइट। तो हमारी एक आँख का जो साइज़ रहेगा, हम उतना ही साइज़ लेके बीच में उसकी जगह छोड़ेंगे उतनी ही, और फिर हम अपनी दूसरी आँख को सिमिलर प्रोपोर्शन में बनाएंगे। तो जो हमारा साइज़ है या स्केल है, प्रोपोर्शन है, वो बैलेंस्ड होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज हार्मनी और यूनिटी. Cezanne, an artist from post-impressionism, stated, when paintings are done right, harmony appears by itself. The more numerous and varied they are, the more the effect is obtained and agreeable to the eyes. अब Cezanne is a famous artist from post-impressionism. He says अगर पेंटिंग्स को सही ढंग से किया जाए, अगर सारा बैलेंस क्रिएट कर लिया जाए, तो हार्मनी अपने आप ही अपेयर हो जाती है, और जितना मर्ज़ी आप डिफरेंट इफ़ेक्ट क्रिएट करो, बैलेंस वो अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, और आईज़ आपकी उस डिफ्रेंशिएशन में भी एक हार्मनी या यूनिटी ढूंढ लेती है. यूनिटी इज़ अचीव्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ work of art are perceived as harmonious, giving the work a sense of completion. A good work of art in all aspects creates a sort of harmony. देखो, अगर एक आर्ट वर्क अच्छा बना है, अगर उसमें हर तरह का एलिमेंट और प्रिंसिपल्स का बैलेंस है, उसमें 6 लिम्स का ध्यान रखा गया है, तो अपने आप में वो खूबसूरत ही बनेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हार्मनी को भी अचीव कर लेगा. Harmony is achieved in any work by using similar or related elements throughout the work. ये नहीं है कि हम एक पोर्शन बनाते हैं तो उसी में सिर्फ रूल्स को ओबे करें और बाकी का काम करते हुए उसको भूल जाएं. क्या होता है क्या कि हम जो बाकी का जो बैलेंस लाने के लिए हमें थ्रू आउट ऑफ दैट क्रिएशन ऑफ आर्ट वर्क उसको याद रखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा. हार्मनी गिव्स एन uncomplicated look to a piece of artwork. All masterpieces and beauty of nature can be taken here as an example. देखिए, नेचर में अपने आप एक तरह की हार्मनी है, नेचर में अपने आप ही एक बैलेंस है. स्काई इज़ ब्लू एंड
वाटर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ब्लू. आई विल नॉट से कि पानी नीले रंग का होता है, बट अब हम जब वाटर का रिफ्लेक्शन बनाते हैं या हम वाटर शो करते हैं तो हम ब्लू कलर्स में ही करते हैं. तो नेचर में अपने आप से एक तरह की हार्मनी होती है, सब तरह का बैलेंस नेचर अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेता है. हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज number 6 is abstraction. Dictionary defines abstraction as an expression or work in which a subject is not realistically represented and or even recognized. It actually originated as a style of art wherein a realistic object was reduced, abstracted to its basics of structure. It evolves after a series of realistic drawings when with a flow and expertise a complete drawing is abstracted to its basic elements, leaving just a gesture of it by the look of it. It follows a reverse order of line to a complete work. For instance, see the abstraction of bull by Picasso in the following picture. अब अगर आप बुल को पिक्चर को देखें जो ये अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें देखिए बुल की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, फिर उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है. इट इज़ काइंड ऑफ स्क्रिबलिंग ऑफ द बेसिक इमेज and then to giving impression of the original image. अगर हमने ताजमहल दिखाना हो बट उसको रियलिस्टिक फॉर्म में ना दिखाना हो तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक डोम का सर्कल हाफ सर्कल लेके डोम का स्ट्रक्चर बना के साथ में 4 उसके मिनारेट्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में खड़े कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो ताजमहल का इम्प्रेशन बन जाता है. हम रोज़ दिखाना चाहते हैं तो हम एक बड सा शेप लगाकर नीचे उसके एक डंडी सी बनाकर हम उसको रोज़ की तरह रिप्रेजेंट करते कि ये रोज़ बड होगा. तो ये सब क्या है, ये सारी एब्स्ट्रैक्शन है ओरिजिनल फॉर्म से. ये कैसे आती हैं, ये लाइन इन लाइन उसको ड्रॉ करके उसको बिल्कुल ही बेसिक ड्राइंग पर ले जाने को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं. Stylization. Stylization is addition, improvisation of artificial elements into an artwork to make it visually attractive. It may not look real, but it appeals to the eye. Lines and forms are simplified for the sake of ornamentation. It is a decorative generalization of figures and objects, where they reduce to motions and patterns. Like example is a stylized sun and a tree. Now summing up, to learn art or to appreciate art, knowledge of these elements and principles is mandatory. As you progress in this field, these words take permanent place in your expression and language, giving you an edge over all others who do not study art. तो मैं इसको सम अप करना चाहूँगी. देखिए, अगर आर्ट को समझना है, ये पहला लेसन है आपका. इसमें समझने के लिए ये इतना ही काफ़ी है कि ये सारे जो हमने अभी तक एलिमेंट्स पढ़े हैं, 6 लिम्स पढ़े हैं या हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंस रखते हैं. अगर हम इसको अपनी ड्राइंग में इन्वॉल्व कर लें तो डेफिनेटली वी विल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट and we will definitely excel over all those जो इनको नहीं पढ़ पाए या जो आर्ट नहीं स्टडी करते हैं. तो ये सारे बेसिक्स हैं किसी भी ड्राइंग वर्क के लिए, किसी भी स्कल्पचर वर्क के लिए और इवन किसी भी और क्रिएटिव आर्ट वर्क के लिए. I hope that you understood all these points. This also can be a separate question and small other questions can be framed over the single thing. Okay, what is stylization, what is abstraction, or what is rhythm, or what is balance, etc, etc. With this topic our first lesson is completed. Now next lesson would be started after the break. And what we have studied here, art and fundamentals of art, or fundamentals of art are further divided into 6 limbs: elements of art and principles of art. Thank you. Have a nice day.